A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of Subject Economics. Dear student, in the previous lecture, we have started our another book that was Indian Economic Development. And in that book, we have started our first chapter that was Indian Economy on the Eve of Independence. Dear student, today in our seventh lecture, we are going to discuss some further topics of the chapter such as industrial sector on the eve of independence and the situation of foreign trade. So let's start one by one. Initially, we are going to discuss about the industrial sector. What are the industrial sector? We all know all the sector, the complete sector which comprises or include industries and the industrial activity is known as the industrial sector. If we talk about the industrial sector on the eve of independence, then there was a concept of systematic deindustrialization by the Britishers. Now, what was the systematic deindustrialization? It is the term used for the exploitation that have been made by Britishers to our industries. That means industrialization means setting up the new industries, and deindustrialization means uh, removing the established industries or making the established industries in the ruined situation or make them completely destroyed. So, what was the main motive behind the systematic deindustrialization during the British rule? Britishers came to our country and why they adopted the concept of systematic deindustrialization. The first motive was to exploit India's wealth of raw material and primary product. India was a country which was having ample amount of raw material and the primary products. तो क्या करना, इंडिया को एक्सप्लॉयट करना किसके लिए, बेसिकली रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए. एंड व्हाट वाज द सेकंड मोटिव? टू एक्सप्लॉयट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट. और इंडिया को क्या बनाना, पोटेंशियल मार्केट बनाना, सो दैट द ब्रिटिशर्स can sell out their finished goods in the Indian economy or in the Indian market. So these two were the motives of systematic deindustrialization. Now, what were the different results of the systematic deindustrialization? The first one was decline of handicraft industries and consequent massive unemployment. क्या हुआ बेटा, जो handicraft industries थी वो decline हो गई, उनका scale reduce हो गया, बहुत सी small scale industries या जो handicraft industries थी वो close down हो गई. And when the production scale reduce up and when they become just close one, तो क्या हुआ, इन रिजल्ट देयर वॉज अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो क्वांटिटी थी, वो इकोनॉमी में बूस्ट हो गई, इंक्रीज हो गई. सेकेंड, द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. अभी तक इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का ही प्रोडक्ट क्या करता था, रन करता था, लोग उसी को डिमांड करते थे. बट नाउ विद द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अब ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया और उन्होंने अपने गुड्स को इंडियन इकोनॉमी में पेनिट्रेट कर दिया. नाउ सी द फर्दर टॉपिक इन दिस. पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हाईलाइटेड बाय द 2 पॉइंट्स. अब हमने कहा कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन बहुत पुअर थी. वाई वी आर सेइंग दिस? सो देर आर 2 important points that are representing that in real the industrial sector was very poor. The very first important point, that is the decay of handicraft. We all know beta that before the British rule, prior the British rule, our handicraft, Indian handicraft was worldwide famous and was having a excellence reputation in the concern of variety, in the concern of quality, in the concern of the its grade. बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूटेड टू देयर डिके. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था, वो क्या हो गया, डिके का मतलब क्या होता है, खराब हो गया, डिकम्पोज हो गया. एंड द मेन रीज़न फॉर द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, अब हम बोलें कि भाई हैंडीक्राफ्ट कैसे ख़त्म हो गया, सो उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था, दैट वॉज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में टैरिफ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और वो टैरिफ पॉलिसी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्या करना, पार्शल होना, भेदभाव करना.
ठीक है, किसी सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन का फेवर लेना। तो उन्होंने जो टैरिफ पॉलिसी हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करी वो कैसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। एंड व्हाई वी आर सेइंग इट डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जस्ट सी क्या थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी 3 एलिमेंट है और इन 3 एलिमेंट से हमें पूरी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। द फर्स्ट, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। दैट मीन्स अगर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए उनको कोई भी टैरिफ दैट मीन्स टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। अब ब्रिटिशर्स अगर हमारी कंट्री में कुछ गुड्स इम्पोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी उनको कोई टैरिफ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि ब्रिटिशर्स के लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या हो गया, टैरिफ फ्री हो गया। एंड थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी और टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अब अगर इंडियन जो हैंडीक्राफ्टियंस थे अगर वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते तो उनके एक्सपोर्ट्स पे क्या किया, बहुत हैवी अमाउंट की जो ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस थी, उनको इम्पोज किया। ब्रिटिशर्स के लिए कोई टैक्स नहीं और इंडियंस के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स क्या किया, इम्पोज किया। इसको हमने कहा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंट ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग, और इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का रिजल्ट क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिया में, इंडियन मार्केट में जो शेयर था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग इट्स शेयर। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनके जो शेयर थे मार्केट में वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो गए। वेदर वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट और द फॉरेन मार्केट, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या फॉरेन मार्केट की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। नाउ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज द एंड रिजल्ट, और इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया का जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था वो डिके हो गया। नॉट ओनली द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे सच एज टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, एक और जो पॉइंट था जिसने कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिके करा वो था कंपटीशन दैट हैव बीन गेन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सेकंड, चेंज डिमांड पैटर्न ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, जो इंडियन कंज्यूमर से उनका डिमांड पैटर्न भी अब इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर से क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। Now, this was the first point. Now, the second point, bleak growth of modern industry. What is the meaning of bleak? In the previous lecture, we have discussed bleak means very slow. So, or around to zero. जिसको हम वेरी स्लो भी बोल सकते हैं या फिर ना के बराबर भी बोल सकते हैं। तो मॉडर्न इंडस्ट्री कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। देखिए, अंडर द ब्रिटिश रूल मॉडर्न इंडस्ट्रीज सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ. It was only in the second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence. अगर हम अपनी कंट्री में बात करें तो 19th century के भी हाफ के बाद हमारी कंट्री में थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का इमरजेंस या फिर उनका जो बर्थ था वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, सी सम ऑब्जर्वेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स इसने बताए हैं, कौन कौन से हैं। पहला देखिए, इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें स्टार्टिंग में तो हमारी कंट्री में जूट और कॉटन टेक्सटाइल्स थी। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया। कहाँ लोकेटेड थी, वेस्टर्न इंडिया, मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में, एंड वर मेनली कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस। और उनको कंट्रोल कौन करता था, इंडियंस करते थे। वेयर एज इफ वी डिस्कस अबाउट द जूट इंडस्ट्रीज देन दीज वर सेंट्रलाइज इन द बंगाल, है ना। इनका जो स्टैब्लिशमेंट था वो कहाँ था बेटा, बंगाल में था। एंड वर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स, और इनको कंट्रोल कौन करता था, जो फॉरेनर्स थे वो कंट्रोल करते थे। सेकेंड पॉइंट, इन द बिगनिंग ऑफ द 12th century द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री केम अप। और 12th century में हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई, जिसमें कि अब देखिए आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम आजकल टिस्को के नाम से जानते हैं, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। इसका मतलब जो टाटा इंडस्ट्री है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमारी कंट्री में कुछ न्यू इंडस्ट्रीज और स्टैब्लिश हुई, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज भी क्या हुई, हमारी कंट्री में स्टैब्लिश हुई। नेक्स्ट, देयर वर हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारी कंट्री में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत रेयरली थी। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर
इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लो। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की तो इनका जीडीपी में या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्सट्रीमली लो था, बहुत कम था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका, स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। यहाँ पे स्टेट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स का पार्टिसिपेशन क्या था, बहुत लिमिटेड था। एंड इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टिल ओनली रेलवेज एंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने जितना एक्सपेंशन किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे वो क्या था हमारी कंट्री में, सिर्फ रेलवेज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये भी उन्होंने क्यों किया, सो दैट दे कैन मेक द मार्केट मोर स्ट्रॉन्ग इन द इंडियन इकोनॉमी। Now, in very short, we can describe the industrial sector on the eve of independence. First point देखेंगे, handicraft industry was systematically destroyed by the British government. British government ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को तो कम्प्लीटली क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी एक सिस्टमेटिकली वे में। सेकेंड, मॉडर्न इंडस्ट्री शोड अ ब्लीक एक्सपेंशन। मॉडर्न इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन था, जो ग्रोथ था, वो ना के बराबर था। थर्ड एंड लास्ट, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट। दैट मीन्स कि कैपिटल गुड की इंडस्ट्री लगभग ना के बराबर हमारी कंट्री में उस टाइम पे स्टैब्लिश करती थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड। वी ऑल नो व्हाट इज द फॉरेन ट्रेड. If we talk, before the British rule, India had acquired eminence in the area of foreign trade. That means we were world famous for our trade, for our goods. See, India was a well-known exporter of the finished goods such as cotton, raw silk, textiles, iron goods and precious stones. ये सारी चीज़ें थी जिनको कि हम लोग एक्सपोर्ट करते, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते थे, we were renowned in this field. एंड द रोमन्स यूज टू कॉल इंडिया, उन्होंने एक टाइटल दिया, द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बुलियन। ठीक है, क्या टाइटल दिया, द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स बुलियन। बट जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने सारी सिचुएशन को क्या कर दिया, कंप्लीटली एंड अप कर दिया। देखिए, द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या पहुंच गई। फर्स्ट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड importer of the finished good. What we used to do, we used to export all the type of primary and raw material to the British government, to the Britain, such as cotton, wool, jute, indigo, sugar, एंड इन रिटर्न इन्हीं रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड बनते थे उनको हम लोग अपनी कंट्री में क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हम लोग फॉरेन ट्रेड में एक्टिव थे, बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज completely controlled and regulated by the British government. मोनोपोली थी, किसकी थी, ब्रिटिश रूल की मोनोपोली थी। एंड इसमें देखिए, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन। जितना भी कंट्री का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उसमें से 50% से ज़्यादा या तो ब्रिटेन को इम्पोर्ट होता था या ब्रिटेन से एक्सपोर्ट होता था। सेकेंड, while export of primary products from India supplied inputs to the British industry, imports of finished goods and Britain provide a huge market to the British industry. Third and last point, that is surplus trade, but only to benefit the British government. No doubt we were on the surplus trade side. That means surplus trade क्या होता है बेटा, when we used to export more and import less, that is a surplus trade. हमारी कंट्री का उस टाइम पे बैलेंस सरप्लस ट्रेड का था, बट इस सरप्लस ट्रेड का जितना भी बेनिफिट था वो सिर्फ किसको मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला। सी, द सरप्लस वॉज गोइंग लार्जली टू एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी गुड विच इज़ अ साइन ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो भी हमारा सरप्लस था वो क्या हो रहा था, बेसिकली यूज़ हो रहा था किसके लिए, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स के लिए। ठीक है, डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, सप्लाईज ऑफ द सेवरल इसेंशियल कमोडिटीज डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सरप्लस ट्रेड होने के बावजूद भी बहुत सी बेसिक कमोडिटीज थी, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ, मेडिसिन्स, ये हम लोग इसके लिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, इनको इम्पोर्ट करते थे। एंड द नेक्स्ट वन, द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज्ड। अब जो ट्रेड सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा पैसा था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया। कहाँ यूज़ किया, इंस्टेड इट वॉज यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो एक्सपेंसेस थे वो उन्होंने उससे मीट आउट करे, और जितनी भी वॉर्स उन्होंने फॉट, दैट मीन्स लड़ी थी कि उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
उससे भी उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी इन्होंने हमारे सरप्लस ट्रेड से क्या करे, राइट ऑफ करे, उससे क्या करे, ऋण करे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बेटा। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर and the situation of industrial sector, in which we have discussed about mainly about the discriminatory tariff policy, systematic deindustrialization and bleak growth of modern industry. And the second topic that we have discussed, that is the foreign trade, in which we have discussed about the discriminatory tariff policy, and we have discussed about the situation of India in the concern of foreign trade at the eve of independence. This is all about today. God bless you all. Stay home, stay safe.